of the voyage to comply with the above stability criteria. So prior loading, master to demonstrate, vessel will comply with above criteria at sea and arrival disport. कहीं पे भी at sea या कभी भी above criterias are not going to be compromised. The master will show that by calculations. And lastly, the list will be zero. That means vessel will be upright. When she departure load port, prior departure load port. These are the what is called as the intact stability criteria for grain. ओके, ये आपका कार्गो वर्क का पोर्शन था सारा का सारा. ये इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन न्यूमेरिकल में मेरे को ये सारी वैल्यूज चाहिए, तो मुझे ये सारी की सारी मीट करनी चाहिए मेरे को न्यूमेरिकल में. ओके, नाउ बेसिकली my problem is that if my vessel is loaded with grain, then the grain is liable to shift. That is my problem. So therefore, I have got something that the shift of grain which will happen will be called as healing moment, because it will cause a moment to be done towards that side wherever the shift happens. If she goes to the starboard, she will heel to starboard, and therefore a moment is going to be caused. What is a moment? It is a product of force and distance. W into D is nothing but a healing moment. W is the quantity of cargo which shifts. D is the distance through which it shifts. That will give me a healing moment. Since it is attached to a grain, therefore it is also called as, and it is attached to the volume of the hold, therefore it is called as a volumetric healing moment. Now, in grain, we have got either the compartment is fully filled or the compartment is partially filled. So, if the compartment is fully filled, then the grain which will be shifted would be lesser. But if there is a partly filled hold, then the grain which is shifted is higher. The healing moment will be higher. Okay. Now, now, in case of partly filled compartments, the healing moment for partly filled, whatever is the healing moment, 1.12 times, that means 12% more, is the amount that will be called as the healing moment for the calculated healing moment, whichever is given to you in the book, in the stability booklet. So for partly filled holds, the healing moment will be 1.12 times the actual healing moment. For fully filled holds, the healing moment is
basically 1.06 times the calculated healing moment for fully filled. Now, the total of all the healing moments are calculated. They are calculated. Now we come to what is called as the lever. So let us come to what is lambda 0. Lambda 0 is the value of the healing lever at 0 degrees. That is equal to the assumed volumetric healing moment. Volumetric healing moment, in short, is also called as VHM. So that divided by stowage factor into the displacement gives us the lever at 0 degree angle of heel. The lever value at 40 degrees angle of heel is given by a value which is zero point 0.8 of the value of the healing lever at 0 degree. We are interested in both these values. We will be calculating it. Both the values. सर एक बार रिपीट करें सर, ये लैम्डा जीरो से. Lambda 0 is the value of the healing lever at 0 degree. When she is upright. सर 0 By डिग्री this पे formula. हील तो होती नहीं है, फिर हीलिंग मोमेंट कैसे जनरेट हो जाएगा? There is going to be if the vessel is upright, then at that point in time, due to the vibrations, the grain settles down and a void space gets created. If that happens, then there is going to be, due to the stowage factor of the grain, there is going to be some void space which will get created. Okay, sir. So therefore, a lever will now get created. What is the value of that lever is what I'm interested in. That value is whatever is the volumetric healing moment assumed divided by the stowage factor of that grain which is given to you into the displacement. This will give you the value of that lever. Sir, but जैसे due to vibration the cargo will settle down evenly, no sir? जैसे sides पे अगर आप भी रखा होगा तो वो evenly आ जाएगा. But it is liable to shift. So Okay. what is the heel that will create due to that void space which has got created? Now, Void space of tank, sir. Tank के ऊपर जो रह गया वो वाली that's space right. कह रहे हो? Okay, That's okay. right. What the void space. The void space. So if this be the GZ in meters and this be the theta, which is your angle of heel, then this would be the GZ curve which you will plot or which will be given to you. Let us say the values are given like this 0, 10, 20, 30, 40, and so on and so forth. Let us say these are the values. And this is this thing. Now, this is your 0 degree वाला line. तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी, सपोजिंग 0.2 मिलती है, तो यू विल गो ऑन टू दिस ओवर हियर 0.2. सपोजिंग ये मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं. तो ये आपका 0.2 मिल गई आपको यहां पे वैल्यू वाई एक्सिस पे. ये आपकी लैम्डा 0 वैल्यू है. लैम्डा 40 will be 0.8 of 0.2.
which will be, again I'm taking, so this will be 0.8 of 0.2, which will be equal to 0.16. Agreed? सर उससे छोटा हो जाएगा. उससे छोटा हो जाएगा. Do you agree on this? Yes, no? सर बट एंगल 40 डिनोमिनेट्स की 40 डिग्री क्या कहते हैं लिस्ट पे हमारा लैम्डा यही Angle of heel. 40 is the angle angle of of heel. heel. Yeah. Sir, but angle of heel will increase. It should be more, no? Because more force should be there because सारा cargo tilt हो गया नहीं. अभी हम कुछ और चीजें बातें कर रहे हैं इस वक्त. हम डाइग्रेस हो जाएंगे अगर हम थ्योरी ऑफ कार्गो में जाएंगे तो. अभी मेरे को प्रोसीजर पहले करने दो, उसके बाद में प्रोसीजर के मेरे से आप वो पूछ सकते हो डाउट. बिकॉज अगर आप मुझे ग्रेन कार्गो की थ्योरी में लेके जाओगे तो देन आई एम गेटिंग इनटू योर कार्गो वर्क पेपर. सी आई हैव टू स्टिक टू व्हाट माय डोमेन इज. माय डोमेन इज स्टेबिलिटी कैलकुलेशन. तो मुझे कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ना कि आपकी थ्योरी के उस पे. वो डाउट्स आप प्लीज कैप्टन रैना के साथ में ग्रेन कैलकुलेशंस, ग्रेन थ्योरी जो है, ग्रेन कार्गो की थ्योरी, वो आप उनसे सेटिस्फाई कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज अदरवाइज आई विल लूज माई फोकस. इज दैट ओके? ठीक है सर. Yes. सो प्लीज क्लियर दीज डाउट्स व्हाट एवर यू आर रेजिंग नाउ. ग्रेन क्यों सेटल करती है, क्यों शिफ्ट करती है, क्यों नहीं करती है, कैसे हम रोकते हैं उसको, वो सारी चीजें जो है ना आप कैप्टन रैना के साथ प्लीज कीजिए. ठीक है? इज दैट ओके? Yes, sir. ऑलराइट. नाउ मेरे को 0.16 चाहिए, वो 40 पे है, तो मैं 40 पे जाता हूं. ये मेरा 0.16 आएगा जो कि नेचुरली 0.2 के नीचे होगा. एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. So I join lambda 0 and lambda 40, which will be a sloping line downward. ये स्लोप जा रही है नीचे. एग्रीड? Yes, sir. Okay. All right. Now, what my question is saying, जो मैंने लिखा था point number 2 was net residual area. नेट रेजिडुअल एरिया का मतलब है ये एक तो मेरा एरिया है अंडर द राइटिंग कर्व, और ये मेरा, और एक मेरा ये आ रही है ये लाइन हीलिंग की, हीलिंग आर्म कर्व. सो द नेट रेजिडुअल एरिया between the writing curve and the healing curve should be not less than 0.075 मीटर रेडियन. का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं 40 डिग्री से एक लाइन नीचे खींचता हूं ये, तो ये वाला जो मेरा एरिया है, ये एरिया इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. आर यू विद मी? यस और नो? ये मेरा एरिया should be not less than 0.075 meter radian. Agreed or no? Yes, sir. यहां तक ओके है?
Yes, sir. Alright. मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं? अब वो क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे को सिम्पसन रूल से मैं 0 to 40 का पूरा एरिया निकाल सकता हूं, कैन आई? So total area 0-40 degrees. Can I find out by Simpson rule? ये तो आता है. Yes, sir. So 1, 2, 3, 4, 5. Rule number 1, H by 3 into SOP. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Agreed? What is the value of H? 10 degrees. So get rid of degrees. 10 divided by 3 into 57.3. मैंने वो रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया into SOP. Are you okay with this? So many meter radian will be the area total from here to 40. So degree is equal to 1 by 57.3 radian. ये You remember हमने किया था 57.3 degrees is equal to 1 radian. So 1 degree is equal to 1 upon 57.3 radian. 360 degrees is equal to 2 pi radian. Yes, agreed. 1 degree is equal to 1 upon 57.3 radian. 2 पाई को 360 से डिवाइड कर दो, देखो। या 360 को 2 पाई से कर दो, सॉरी, क्या वैल्यू आती है? सो 10 डिग्रीज, सो 10 डिग्री को मैंने रिप्लेस इससे कर दिया, ये आ गया। तो ये मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। एग्रीड? ठीक है, तो 57.2 समथिंग 43 होगा। हाँ, 57.3 लेते हैं उसको। ओके सर। सो बेसिकली यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको टोटल एरिया मिल गया। अब मुझे टोटल एरिया में से कुछ एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये वाला जो है जहां पे इसने ये काटा, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां पे इसने काटा, जिस लाइन कर्व को ये लाइन ने काटा, वहां से मैंने ड्रॉप किया। सपोजिंग ये 10 पे आ रहा है, तो अब मैं कुछ नामकरण करता हूं, ए, बी, सी, डी, ई। तो अगर मैं टोटल एरिया में से ये एरिया निकाल लूं, एबीसी, सो टोटल एरिया माइनस area of triangle ABC. I'm assuming this is a triangle because it's a very chota thing. So I can assume AB to be almost like a straight line, and therefore there will not be much of a variation between the area of a triangle and ABC. Agreed? Minus
area of the trapezium, this is a trapezium, BCDE. Agreed on this? तो Yes. टोटल एरिया मैंने इससे निकाला, उसमें से मैंने ये ट्रायंगल का छुटकू एरिया निकाल लिया, उसमें से मैंने ये ट्रेपीजियम का छुटकू एरिया निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे को क्या मिला? नेट रेजिडुअल एरिया, ये जो मुझे चाहिए, एंड दैट शुड बी नॉट लेस देन 0.075 मीटर रेडियन। ये मुझे कैलकुलेट करना है। समझ में आया कि नहीं? अब तो लैम्डा का काम हमारा ग्राफ में इंटरपोलेट करने का था कि वहां से वैल्यू लेके ग्राफ में चेक कर दो वैल्यू। करेक्ट, वो लैम्डा का काम था। लैम्डा 0, लैम्डा 40। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC will be equal to half into base into height. So half into base into height. हाइट BC मुझे यहां से मेजर करनी पड़ेगी। अगर ये 0.2 है, ये 0.16 है, तो ये शायद 0.19 होगा। आई एम एज्यूमिंग इट, ओके। ये मुझे मेजर करना पड़ेगा। तो हाइट इज 0.19, मैंने 0.19 ले लिया। बेस, हाउ मच इज माय बेस? 10 degrees, right? Into 10, get rid of degree, divide by 57.3. This will give me so many meter radian will be my area of the triangle ABC. ये बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। Is area triangle okay with everybody? यस सर। ओके, अब मैं आ रहा हूं ट्रेपीजियम पे। एरिया ट्रेपीजियम BCDE is half sum of parallel sides into distance between them. Is half. अब sum of parallel sides, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स BC हमने बोला 0.19 प्लस DE वो हमने निकाला था 0.16 into distance between them. How much is the distance between them? 30 सर डिग्री। 30 डिग्री। 30 degrees. और डिग्री को गायब कर दो, डिनोमिनेटर में 57.3। This will give me so many meter radian, the area of the trapezium. अब टोटल एरिया आपने यहां निकाला,
अब उसमें से सब्ट्रैक्ट किया ये, फिर ये आपको मिलेगा कुछ एक वैल्यू। सो नेट रेजिडुअल एरिया की कुछ वैल्यू आएगी। सपोजिंग वो आती है 0.89 मीटर रेडियन, सपोजिंग। So then you will write down, since 0.89 meter radian is greater than 0.075 meter radian, hence criteria is satisfied. ये आपका क्राइटेरिया नंबर 2 था, वो सेटिस्फाई हुआ है। हाँ जी, नाउ यू आस्क मी द डाउट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सर इसमें आपने सेकंड में दो चीज बोली थी, एक तो बोला था कि अप टू फुट, जैसे मैं पढ़ता हूँ, नेट रेजिडुअल एरिया बिटवीन द हीलिंग आर्म कर्व हाँ, एंड राइटिंग आर्म कर्व अप टू 40 डिग्री और एंगल ऑफ फ्लडिंग। अभी रुक और जाओ, वो अभी उस पार्ट को, अभी कॉम्प्लिकेशन को मैं नहीं करना चाहता, मैं अभी सिंपल वाला कर रहा हूँ। हाँ सर, ये वाला तो हो गया, चलो ये वाला पहले मैं एरिया। सिंपल करना, मैं पहले सिंपल, अभी वो कॉम्प्लिकेशन वाले को अभी अलग करूंगा। ये वाला पार्ट पहले, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब बेसिकली, अच्छा, दिस वैल्यू जहां पे ये काटता है पहली बार, ये जो वैल्यू है 10 डिग्री, ये मुझे देगा मेरी हील ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ग्रेन, और लिस्ट ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ग्रेन। आई रिपीट वंस अगेन, ये जो पहले जहां पे कर्व में, राइजिंग कर्व में काटता है, जहां पे जिस पॉइंट पे, वहां से जो मैं परपेंडिकुलर नीचे खींचता हूं, दिस विल गिव मी माई हील ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ग्रेन, दिस वैल्यू। तो अगर ये सपोजिंग 5 डिग्री आती है तो ये 5 डिग्री होगी, अगर ये 7 डिग्री है तो 7, इसमें ये 10 मैंने ले ली। देन यू विल से सो द फर्स्ट पॉइंट विच वॉज देयर, ये पॉइंट नंबर 2 था। फर्स्ट पॉइंट वॉज द एंगल ऑफ हील ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ग्रेन शुड बी नॉट लेस देन, हाउ मच, कितनी थी? 12 डिग्रीज। 12 डिग्री और डेक इमर्शन। एंगल ऑफ डेकेज इमर्शन विच एवर इज लीस्ट। सो सपोजिंग किसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डेकेज इमर्शन दिया हुआ है 15 डिग्री, तो हाउ मच शुड बी द एंगल ऑफ हील? 12 डिग्री। 12 डिग्री से कम। अगर किसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डेकेज इमर्शन 8 डिग्री दिया हुआ है, 8। 8, ये वैल्यू 8 होनी चाहिए, 8 से नीचे। अगर ये 10 डिग्री है तो ये डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, देन यू डू योर स्टोरेज प्लान, पूरा चेंज करो, दिस विल नॉट मीट द क्राइटेरिया। सो इसमें अब इस पार्ट में आप लिखोगे एंगल ऑफ हील ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ग्रेन इज इक्वल टू 10 डिग्रीज, since 10 degrees is less than 12 degrees, hence this criteria is satisfied.
ये आपका पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। इससे आपका पॉइंट नंबर 2 सेटिस्फाई हुआ। इससे 12 से कम होना चाहिए तभी सेटिस्फाई होगा मतलब। 12 से कम होना चाहिए तो सेटिस्फाई होगा, बिकॉज ये 10 है, 10 इज लेस देन 12, देयरफॉर सेटिस्फाइड। सर ये अगर डेकेज इमर्शन इन द क्वेश्चन इज गिवन सपोज 10 and it comes 11 the angle of heel, so it would not satisfy the condition, correct? करेक्ट, नॉट सेटिस्फाइड, तो देन यू विल राइट नॉट सेटिस्फाइड। Okay. बट जनरली आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें कि वो सेटिस्फाई होता है। वो ये छेड़ाखानी नहीं होती, ये छेड़ाखानी जहाज पे होती है। यू विल वेयर यू विल नॉट मीट, बिकॉज चार्टर आपको कार्गो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देगा कि वो पार्टली फिल्ड होगा और आपकी वो जो डेकेज इमर्शन है या आपका जो ये एंगल ऑफ हील है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पंगा जो है ये जहाज पे होता है ऑन दीज शिप्स। अपने साथ क्वेश्चन में नहीं होता सर ये सब। हमारे क्वेश्चन में वैसे ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वैसे ही पसीना छूट जाएगा ये क्वेश्चन को तो करते करते। तो वैसे ही इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, सो इसलिए ये क्वेश्चन देते नहीं है। Okay. बट यू शुड नो हाउ टू डू इट, बिकॉज प्रैक्टिकली ऑन शिप अगर गए क्रेन कार्गो लोड किया तो ये सारी राम कहानी करनी पड़ती है। एंड दिस होल कार्यक्रम इज अ नाइस लेंदी कार्यक्रम, पूरा मतलब इट इज लाइक अ गुड बियर सेशन ओनली। अच्छे तरीके से तरक्की से बैठ के करो, तसल्ली से। Next, the third criteria was the GM should be at least 0.3 meter. So you will calculate the GM of the vessel. W दिया हुआ होगा, KM दिया होगा, KG दिया होगा. You will calculate the GM fluid. So GM fluid after calculation will, let's say, come as equal to 0.5 meters. Then you will say, since 0.5 is greater than 0.3 meters, hence this criteria is satisfied. Then you will say next one, vessel is upright on departure. So ये भी criteria हो गया. Then you will write, since all the above criteria, intact stability criteria, have been satisfied, hence vessel meets intact stability criteria for grain cargo. यहां तक ओके है? Yes, sir. ओके, ऑलराइट। अब मैं बाउंसर पे आ जाता हूँ, मतलब ये बाउंसर वैसे ही बाउंसर था, अब और खतरनाक बाउंसर आ रहा है कि सपोजिंग क्वेश्चन में कहता है एंगल ऑफ फ्लडिंग इज 35 डिग्रीज। ओके, सो नाउ यू गो बैक टू योर पॉइंट नंबर 2 एंड यू रीड दैट पॉइंट। क्या लिखा था हमने? Can somebody just read that point number 2? The net residual area between the heeling arm curve and righting arm curve up to
40 degree or angle of flooding, whichever whichever is is less than 0.075 meter radius. correct. So therefore, basically it is 40 degrees or theta f, whichever is less. मतलब if theta is given to you as 35 degrees, then which area will you take? Area will be up to 35. If theta f is given to you as 42 degrees, then you which area will you take? 340. ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? कि अगर मेरा एंगल ऑफ फ्लडिंग 42 डिग्रीज है तो 40 यूज होगा, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया, ये सारी राम कहानी है. लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि यानी कि एंगल ऑफ फ्लडिंग इज 35, देन यू विल नॉट यूज 40, यू विल यूज 35. मतलब मेरी जो ये लाइन है ब्लू वाली, ये उधर में नहीं चलेगी, मेरे को ये 35 पे चाहिए ये लाइन. यानी कि इसकी बात हो रही है. समझ में आया कि नहीं? सो अब ये एरिया मुझे नहीं चाहिए. मुझे ये एरिया चाहिए. मुझे ये लाइन भी नहीं चाहिए. खाली मुझे वो लाइन, ये लैम्डा 40 की वो तो लेनी पड़ेगी, दैट आई कैन नॉट अवॉइड. तो इसके लिए मुझे वो लाइन तो चाहिए होगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन एरिया नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उसकी मुझे यहाँ पे ये लाइन चाहिए, ये पॉइंट चाहिए 0.16, और ये ऐसे जा रहा है. तो अब डी ई एफ जी, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन बी सी एफ जी, not BCD as a trapezium. Are you with me? This is my 35 degree line. सर इसमें तो पूरा एरिया का चेंज होगा, एच का वैल्यू चेंज करना होगा वो. Absolutely right. बिल्कुल ठीक. अब कहानी पूरी की कहानी में ट्विस्ट है. सो अब जो है ये तो लंबी चौड़ी कहानी है. सो मुझे चाहिए एरिया 0 to 35 डिग्रीज. मुझे चाहिए एरिया 0 to 35. अब एरिया 0 to 35 जल्दी से जल्दी कौन सा तरीका यूज करोगे? सबसे फास्टेस्ट. सर रूल 1 टोटल लगा एरिया देंगे है 1. और एरिया बिटवीन टू सिम्पसन रूल 3 से करके माइनस कर देंगे. अरे भैया बहुत लंबा कर रहे हो. और आसान. रूल 1 कर देंगे सर. सर 1 बीच 4 में 1. एक परपेंडिकुलर डालेंगे और रूल 1 रूल 1 कैसे के लिए कौन से ऑर्डिनेट्स, कौन सा मल्टीप्लायर यूज करोगे? सर 1 4 1 ही करेंगे सर. 0 और 35 के बीच में. दैट्स इट. 0 1 4 1, दिस इज द फास्टेस्ट. और कोई प्लीज मत करना वो जो 5 8 -1 और वो सब कर रहे थे, कुछ मत करना. सबसे मुझे जल्दी चाहिए. सो देयरफॉर आई विल यूज h/3 into SOP with SOP as 141. Please remember. So 0, 17 and a half and 35. That's it. So H is 17 and a half. Is that okay? That is the fastest. अगर 38 दिया हुआ है तो 0 19 38. अगर 36 दिया हुआ है तो 0 18 36. ये तरीका है. Is it okay with everyone? तीन ऑर्डिनेट्स में डिवाइड करके Absolutely right. This is the fastest way.
Okay. ठीक है? Is this okay with everyone? It will not cause any disruption in your areas. I can guarantee you on that. Please. If you are thinking कि मैं अगर 10 10 10 10 कर लूँ और वो 5 8 minus 1 कर लूँ तो you are just wasting your time and their variation in your answer will not be much. जो आपका आंसर वैसे भी आना था वो इसी से भी आ जाएगा. So, इससे आपको टोटल एरिया मिलेगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें से माइनस करना है, वो तो आपको आता है. अब बी सी एफ जी का कैसे निकालोगे? एफ जी को मेजर करोगे. लेट्स से इट कम्स एज 0.17, तो उसका एरिया निकालोगे. समझ में आया? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको आता है, वो माइनस किया, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी एफ जी. एफ जी को मेजर करना पड़ेगा आपको, वो आप ग्राफ से निकालोगे. सो वो 0.17 के करीब कुछ आएगा. डोंट गेट इनटू एक्यूरेसी मोड. Accuracy is the least of our worries here, because whether you are highly accurate or you are least accurate, you will still meet the criteria. You already know the answer. So don't get into accuracy. I am getting 0.16572. Don't get into that. Just 2 decimals, good enough. Because ग्राफ से वैसे ही आप 1 डेसिमल भी नहीं हो पाता, 2 डेसिमल क्या होगा? Agreed? This will give you your net residual area, and that will come as greater than 0.75 meter radian, and therefore you are meeting that criteria. है ना खतरनाक? सर ये क्वेश्चन जनरली आता ही है क्या पेपर में सर? I call this as a sadist question actually, because ये sadist है. It cannot be done within. इसको करने में कम से कम 45 to 50 minutes. मैंने जब करा था सॉल्व तो 50 मिनट मेरे को लगे थे with good speed, and I was doing it with knowing how to do it and things like that. तो 45 से 50 मिनट लगे थे. तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बाय एनी सर्कमस्टेंस पहला क्वेश्चन तो होगा नहीं ऑफ चॉइस. ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा अगर आया तो. राइट, आंसर आपको आता है तो उसमें आप फटाफट सबसे पहले जो है नेट रेजिडुअल को छोड़ देना, बाकी सारे क्राइटेरिया उसको पहले लिख देना. जीएम कैलकुलेट कर देना, वो एंगल ऑफ हील वो वाला, वो सब वो बाकी पॉइंट्स को पहले लिख देना कि दे आर मीटिंग द क्राइटेरिया. अब नेट रेजिडुअल एरिया पे आना, एंड वो अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो भी छोड़ देना. इज गुड इनफ. यू हैव डन द मेजर chunk of the question. That is the strategy which I thought of when I tried to do this question in less than, तो 30 मिनट में तो होता ही नहीं है. सर एक चीज पूछनी थी सर. सर 0 से 35 तक का एरिया लिया है सर रूल 1 से सर, और सर 141 ही कैसे लगा सर? और भी तो ऑर्डिनेट. देखो वहाँ पे डिविजन्स जो दिए हुए हैं वो 5-5 डिग्री पे भी दे सकता है वो आपको, 0, 5, 10, 15, 20. तो आप सारे थोड़ी लेते जाओगे उसके. जितने आप ज़्यादा लोगे उतना आपका टाइम और स्पेंड होगा. आपको तो मिनिमम करना है टाइम स्पेंड. मिनिमम क्या है, फास्टेस्ट क्या है? 141, और उससे तो कोई तेज है नहीं ना. ओके सर, तो 141 3 लेके करता हूँ. बस वही मेरा फास्टेस्ट है वो. उससे मैं और उससे फास्ट तो कोई सोच नहीं सकता मैं. चाहे कितना भी कोई भी एंगल दिया हो 0 से चाहे कोई भी दिया हो, मुझे कुछ भी दिया हो, मैंने तो 141 कर लगाना है बस. as far as it is within 50. That's right. मुझे तो 141 से मतलब है. तो मैं 0 से वहां
जीरो मुझे पता है, एंगल ऑफ फ्लडिंग मुझे पता है, इन दोनों के बीच का एक मध्यांतर वाला वैल्यू है वो ले लूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सो और बेसिकली सर उसका वैल्यू कहाँ चेक करेंगे? ग्राफ पे ही चेक करेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है उसका, उस ऑर्डिनेट का? हाँ, वो ग्राफ से ही लोगे आप। तो ग्राफ दिया रहता है क्वेश्चन में? ग्राफ तो आप बनाओगे। अच्छा, खुद बनाना हेलो 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 जीजेड कर्व आप बनाओगे, है? के एन वैल्यूज दी हुई होंगी, के ओके। एन माइनस के जी साइन थीटा करेक्शन लगा के आप करेक्टेड जीजेड वैल्यू निकालोगे। ठीक है। यार समझ सर, ये कैसे बनाएंगे? सर ये वाला आया तो फिर बाकी पेपर 2 घंटे का है सर। तो इसीलिए तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने क्यों बताया भी, पहले ही आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। ये आपका टेल एंडिंग बैट्समैन है जो कि लास्ट में बैटिंग करेगा। उससे पहले कोई बैट बाकी गलती से भी मत छूना इसको। हालांकि आपको आता है लेकिन नहीं छूना। कोविड में तो नहीं चलो देना ये चाहिए सर इसको। हाँ जी। सर एक छोटा सा डाउट आ रहा था सर इसमें। तो बड़े जो ये- डाउट कर लिए तो छोटा डाउट तो क्या। नहीं सर, जो ये क्वेश्चन 114 जो हमने सॉल्व किया था पहले, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हीलिंग मूवमेंट फुल्ली फिल्ड और पार्टली फिल्ड दोनों दिया हुआ है। तो हमने पार्टली फिल्ड वाले के साथ तो फैक्टर लगाया 1.12 मल्टीप्लाई करके निकाला। तो ये फुल्ली फिल्ड वाले के साथ 1.06 से मल्टीप्लाई नहीं करना है सर, जो भी हमने लिखा अभी नोट्स नहीं में? नहीं। ओके सर, तो जो फुल्ली फिल्ड क्वेश्चन जो 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 वैल्यू दी हुई है फुली फिल्ड की वो इंक्लूसिव है और 1.06। ओके सर, पार्टली वाले में 1.12 करना पड़ेगा, मैं फैक्टर लगा। 1.12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, ओके 1.12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा, जब भी पार्टली फील्ड होगा तो 1.12 लगाओ, मल्टीप्लाई करोगे। और पार्टली फील्ड प्लस फुली फील्ड को टोटल करोगे तो दैट विल गिव यू द टोटल वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट ऑफ द वेसल। ये सर, उससे फिर लैम्डा 0 निकाल लेंगे। अब ये तो हो गया, उससे लैम्डा 0 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है। अब एक्चुअली जहाज में क्या होता है, अब ये तो होगी कहानी न्यूमेरिकल की, राइट। एक्चुअल में क्या होता है कि व्हाट वी डू ऑन द शिप, जब हम ग्रेन लोड करते हैं तो हम ये टोटल वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट निकाल लिया 1.0 जो 1.06 एंड 1.12 जो भी करके निकाल ली वैल्यू। तो what happens is on the ship in my stability booklet there is something called as allowable healing moments. One is called as volumetric healing moments, the other is allowable healing moments. तो मतलब मैं जब टोटल करता हूं तो मेरी अपनी एक्चुअल हीलिंग मोमेंट्स कैलकुलेट होती हैं, सपोजिंग they come as equal to 45,000 एंड मेरी उस कंडीशन की अलाउबल हीलिंग मोमेंट्स सपोजिंग 65,000 है। Since 45,000 is lesser than 65,000, I am meeting the criteria. Did you get that? Yes. So जहाज पे हमारे ग्रेड स्टेबिलिटी बुकलेट के अंदर में एक अलग से एक और वैल्यू भी होती है अलाउबल हीलिंग मोमेंट उस कंडीशन की। तो मैंने जो वॉल्यूमेट्रिक से निकाली ये सब कैलकुलेट करके उसको सीधा कंपेयर किया, वो क्विकली विद इन अ जिफी मुझे एक इंस्टेंस पे दे देता है। तो हमारा लोडिकेटर जो है जहाज पे वो ये काम करता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। That's what the loadicator is actually doing for us. वो मेरे को immediately दे देता है। Are you meeting the intact stability grain criteria or yes or no? सर जो ग्रेन वाले शिप नहीं होते हैं जैसे उनके लिए अपने को DOA लेना पड़ता है, तो ये कैलकुलेशन अपने को इनिशियली क्लासिफिकेशन सोसाइटी को दिखानी पड़ेगी
ये वाली जो भी अपन कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन सोसाइटी को नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को, सॉरी सर, फ्लैग को। फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन को। सो फ्लैग को दिखाते हैं। यही वाला जो दिखाना है ना सर, जो अपन ये सारा जो हमने ये जो सारा एनआरए जो अभी सारी ये करी है, हाँ जी तो सर। इसका एक परफॉर्मा होता है। ओके ओके सर। इसका एक परफॉर्मा होता है। वो परफॉर्मे में मुझे सारी की सारी ये वैल्यूज भरनी होती हैं और ये फिर प्लॉट करना होता है। उसमें ग्राफ भी होता है, तो उसमें मुझे प्लॉट करके ग्राफ बना के करके पूरी वो इट्स लाइक अ नाइस बिग कैलकुलेशन शीट, वो मुझे अच्छे तरीके से नीटली भर के दिस थिंग पेंसिल से, यूजुअली वी डू इट विद पेंसिल नॉट विद पेन। सो पेंसिल से करके पूरा भर के, राइटिंग ऑल द क्राइटेरियाज आर सेटिस्फाइड, वी सेंड इट टू द फ्लैग। सो दिस इज ऑल डन एट सी, माइंड यू, ये सब एट सी हो रहा है। सो एट सी ये काम हम करते हैं और फिर वो अप्रूवल मिल जाती है। बाय द टाइम आई अराइव अलोंग साइड, आई एम रेडी टू लोड। सर ग्राफ बनाना सिखा दो सर, सारी कहानी तो देख ली, ग्राफ ही नहीं बनाना आएगा तो कुछ भी नहीं होएगा वहां पे तो फिर। हे मालिक, जीजेड कब करा तो था सर मैं बैच। अच्छा, मे बैच अभी कराऊंगा, तो उसके लिए दूसरा पसीना बहाना पड़ता है। ओके तो, सर, तो मतलब बाद में होएगा सर हमारा, क्योंकि हाँ, हमारे लिए तो एकदम ये नेक्स्ट साइंस चली गई है आज। तो वो उसकी कहानी एक है, जीजेड कर्व की कहानी, तो वो पूरी कहानी कराऊंगा। तो जब वो कहानी कराऊंगा ना, तो उस वक्त वो बताऊंगा कि कैसे वो कर्व कैसे बनाते हैं। सर अगर ये क्राइटेरिया लिख के आ जाए एग्जाम में जो लिखा है पॉइंट, तो कितने नंबर मिल जाएंगे? तो इसीलिए तो मैंने तो इसीलिए तो सर मैंने मतलब पूछा कुछ भी हो, पर जो समझाया वो लिखाएंगे। प्रोसीजर बता देंगे। सर ये करने लग गए तो कम से कम यूं ना लगे कि हमें आता नहीं था। 150 नंबर का पेपर रह जाएगा सर इसको करने लग गए तो जिसने इसको पहले छुआ, तो उसका तो अबैंडनशिप का कार्यक्रम रेडी है। तो इसलिए मैंने तभी बोला, मैंने कहा ये टेल एंड बैट्समैन है, लास्ट में आएगा खाना। ये जसपाल बुमराह है। सर एक बार हम जब सेकंड मैच में दे रहे थे, एक बंदा पता नहीं खड़े खड़े गिर गया था, वो पेपर दे रहा था, पता नहीं चार्ट वर्क में क्या हुआ। ऐसे ही उस दिन हमारे भी होंगे। जब देखेंगे ना घड़ी 2 घंटे चले गए। मैंने बहुत सारी कहानियां देखी हैं वहां पे लाइव, तो इसलिए मेरे को तो मतलब बताओ मत कि क्या क्या चीजें होती हैं वहां पे। तो अभी पीछे रिसेंटली एक महाशय जी बैठे थे, पेपर आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्वेश्चन पेपर, वो भाई साहब ने आंसर शीट पे अपना नाम भी नहीं लिखा था। उन्होंने कहा कि मेरे को प्यूकिंग हो रही है, तो वो गए वॉशरूम से गायब हो गए, अपना बैग शैग कुछ लेके नहीं आए थे, वहां से गायब, लापता, अबैंडन शिप हो गई थी वॉशरूम से। बाद में फोन वोन हुआ, बाद में सर ट्रेस डाउन हुआ बंदे को। आई वॉज डूइंग ओरल्स एट दैट टाइम, वहीं पे मैं ओरल ले रहा था, तो पूरा राम कहानी शुरू हो गई थी। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच हैपन देयर, लाइव नजर आता है, वो पूरा लाइव वायर है। तो इसलिए वहां पे मजेदार, वहां पे सब चीजें होती हैं, सब चीजें देखी हैं। उस बंदे हुआ क्या सर फिर? हुआ क्या है, वो उसको ट्रेस किया, बंदों से पूछा उसका, क्योंकि नाम भी नहीं लिखा था उसने। तो सर बट ऐसा होता है ना कि आप क्या कुछ ऐसा होता है सर कि आप अगर अपीयर ही नहीं हुए तो ठीक है, बट फेल 3 बार हो गए तो कुछ ऐसा दोबारा करना पड़ जाता है, कुछ ऐसा होता है क्या, इसीलिए करते हैं? नहीं, वो तो था कि मैं नहीं तो स्टार आ जाएगा, तो नहीं तो स्टार आ जाता है ना। सपोजिंग यू गेट लेस देन 50% of the pass marks. So if your pass marks are 120, if you get less than 60, then you will get a star. In which case, then you have to do that subject again at the institute for 3 months.
कोई तो सर स्मार्ट मूव कर गया वो। तो इसने टू अवॉइड अ स्टार उसने पेपर देख लिया, उसने कहा कि भाग ले बेटा। अब ये नहीं पता था कि पकड़ा जाएगा, यहाँ पे और भी धुंधर बैठे हुए हैं लोग। तो नेचुरली उसके बाद में ट्रेस डाउन हुआ, अच्छा क्या नाम था, आगे वाला पीछे वाला, वो कहते हमें नहीं पता। फिर वो पूरे रोल कॉल शीट से देखा, रोल कॉल शीट से निकला नाम। फिर उसको फोन करे खटकाया गया, वो नहीं, फोन ना उठाए। फिर ईमेल भेजी गई, फिर इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट का था वो पता किया गया, फिर इंस्टीट्यूट को बोला गया। अगले दिन भाई साहब आए, तो अगले दिन भाई साहब कहते कि मेरे उल्टी आ गई थी। तो कहते उल्टी आ सर गई थी आपकी ना, तो मतलब सारी टीम पीछे पड़ गई, मतलब स्टार देख के ही मानोगे। और क्या। नेचुरली if you enter that room, your attempt has started. Either you don't enter the room, the MD hall, then it's okay, then it's you are an absent. But if you enter the room, then you can't leave out. इसलिए उसके बाद से फिर हम नया रूल निकाल दिया कि you are not allowed to leave the room only within the first 30 minutes. अब वो रूल आ गया। तो उसके कई बाद आया जगह तो ये। सर गेट पे भी तो ताला मारते हैं कई जगह। तो अब 30 मिनट्स के वजह से नहीं है, जो बोल कुछ भी बोल दो। एक लड़का कहता है मेरे को डायरिया हो रहा है, हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, बैठा रहा तू यहाँ पे। तो सर ऐसे इट्स ऐसे लाइक आउट ऑफ द टॉपिक। सर फॉरनर्स को इतना मुश्किल नहीं होती उनकी फेज वाली टिकट सर। हमारी इतनी मुश्किल होती है, पैसे अगर देखा जाए तो फॉरनर ज्यादा उनको ज्यादा मिल जाते हैं सर। पता ही नहीं क्या सीन है सर, मेहनत यहाँ पे ज्यादा करवाओ। वो that is a separate issue altogether. There's nothing that one can do in that. सर एक चीज पूछना था सर। सर कैप्टन गुरनानी चार्ट वर्क इस वीक में बैच के लिए वो कंटिन्यू करते जाएंगे आगे तक पूरा थ्योरी एंड ऑल, या फिर बाद में कैप्टन धाबा भी आएंगे? What I am doing right now is मैंने I told you कि नेक्स्ट वीक जो है कैप्टन गुरनानी अपने 2-3 दिन लेंगे till Thursday. I think Captain Gurnani will take. उसके बाद after Thursday onwards, I intend combining both March and May batches together, and Captain Thakral will start off. So ओके सर, तो कैप्टन गुरनानी सर थर्सडे लास्ट सेशन होगा। हाँ, so उसके बाद then Captain Thakral will take over from Thursday onwards. So Thursday PM or Friday, whatever. Then Friday, Saturday, Monday, I'll put Captain Thakral so that he can do all the revisions of everything with you. Once you give me a go ahead, once the March batches give me a go ahead, then I'll hold their March exam, the exam that is your navigation paper for the March batch. That's my plan. So Captain Thakral will keep taking till all the doubts are cleared out. ओके सर। So as a this thing I'm doing कि every Saturday तो कैप्टन ठकराल लेते ही रहेंगे, वो तो पक्का है. That I've already spoken with him, so he'll take. So he'll be coming into the class. Probably tomorrow he'll come to discuss के he wants to know basically where particularly are the doubts which are coming. So he'll come into the class tomorrow. ठीक है, all right. ओके, Okay, थैंक यू सर। चलो, see you, bye.